ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم۔ ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنی شکایات کی پٹاری لیے ہوئے ہمارے چند خواجہ سرا دوست۔ شکر ہے دوست ہے کیا دوست چلو ٹھیک ہے، یہ ہسن والی کہڑی گل ہے؟ یہ رونا واسطے اسی ہر واری آنے کہ سانو خدا دا واسطہ جی سیریس لیا کرو، اسی تے مذاق ہاں تے مذاق ہی رہ گئے ہیں۔ پوری دنیا آپ کو سیریس لے رہی ہے۔ یہ تمہیں بھی دیکھنا چاہیے نا، تسی ذرا کوئی گل کرتے ہو ساڈی ذرا ساڈا ذکر ہوندا ہے، ذرا ساڈا نام ہوندا ہے تے ہسن لگ پیندے۔ نال تہاڈے کندھ سانجھی ہے، انڈیا چ اگلیاں نے جج لا لیا ہے ساڈا پھوپھی دا خسرا۔ پھوپھی دا خسرا کیا مطلب؟ ہن پھوپھی دا پتر کہیں گے تے تانوں اعتراض ہونا ہے، پھوپھی دی دھی کہیں گے تے پھر تساں کہنا ایک ہی کہہ دیتے تے پھر پھوپھی دا خسرا ہی کہنا ہے نا۔ صحیح کہہ رہے۔ مغربی بنگال کا جو ضلع اسلام پور ہے وہاں پہ ایک جج مقرر کیا گیا خواجہ سرا کو، اور اس نے عدالتی فیصلے دینے شروع کر دیے۔ جی، یہی خسرانی تقرری دیکھ کے ہم سب مل کے آپ سے ایک اپیل کرنے آئے ہیں۔ کیا؟ یہ وادیاں، یہ بربتوں کی شہزادیاں، پوچھتی ہے کب بنے گی تو دلہن، میں کہوں جوان میرے باجی پہاڑوں میں بابو آ رہا ہے۔ ادھر آ جا نہیں مرے، کسی جانگلی دا بکرا کھلے آنے۔ اوتری نے جدوں دی دوستی فلم دیکھی پاگل ہو گئی۔ اپنے وقت کا مقبول ترین گانا تھا۔ ویسے تو فلم دوستی کے میرا خیال سارے گانے مقبول تھے۔ ہائے چٹھی ذرا سید کے نام لکھ دے، حال میرے دل کا تمام لکھ دے، چٹھی ذرا سید کے نام لکھ دے۔ ہائے روٹھے سیاں کو میں تو اپنے خود ہی منانے چلی آئی۔ اوتری ہے آپ ہی جانا سی اور محلے دے کونسلر نو بھیجنا سی۔ بس گیا تس کنیا کے دوار سجنا، کہاں ہے تیرا پیار سجنا۔ باجی شہری بابو نزدیک آ گیا۔ ادھر آ جا اتری ہے، کوئی ریچھی نہ ہو بھی۔ مر گیا۔ یار آپ تو فلم کو لے کے بیٹھ گئے، آپ آئے تھے یہ جو ہندوستان میں جج کی تقرری ہوئی ہے خواجہ سرا کی، اس تناظر میں آپ اپنے لیے ملازمتوں پہ بات کرنے آئے تھے، تو آپ اپنے ایشو پہ بات کریں۔ جنید صاحب، ملازمتیں ہمارا ایشو نہیں ہے۔ کیا ایشو ہے آپ کا؟ عزت نفس ہمارا ایشو ہے، مساوات ہمارا ایشو ہے، برابری ہمارا ایشو ہے۔ اور کی دسیا سی منو بھائی نے؟ امن ہمارا ایشو ہے۔ نہیں، امن کدو دسیا سی؟ امن دی تو گل کی سی تو منو بھائی کہندے سن امن کر۔ یہ منو بھائی ہمارے والے منو بھائی ہیں؟ جی، آپ والے، کھوئے والے، ملائی والے، وہی تو ایک دانشور ہیں جو سب کو صحیح مشورہ دیتے ہیں اور سارے طبقات پر جو بھی ظلم اور زیادتی ہوتی ہے اس پر آواز بلند کرتے ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے جنید صاحب کہ کب تک اس ملک کے اندر ہجڑے کا نام سن کے یا ہجڑے کی شکل دیکھ کے لوگ ہنسیں گے؟ آخر ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی جب ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں تو وہ ہماری نبض دیکھ کے کہتا ہے چل رہی ہے۔ ہماری بھی نبضیں چلتی ہیں، کوئی ویگنیں نہیں چلتی۔ اور ڈاکٹر یہ بھی کہتا ہے کہ روز چیک کرا جایا کرو۔ زیادہ فری نہ ہویا کر ڈاکٹر نال کمینی، کوئی دی نبض ویکھن واسطے دی باں پھڑتی تو کوئی گان لگ پہ چھڈ میری بینی نہ مروڑ کچھ دیا منگا تین تو بدو بدی کرے دل پیار، چھڑ میری بیڑی نہ
कच दिया मंगा के न तो प्लीज यार, ओए, एक मिनट यार, ये ख्याल कमीजो बैठो थले शौखियो जरा को मौका मिलता तो इंज दौड़ दिए ने जिवें कुकड़ियां तो टोकरा चुक लिया किसे ये जरा ख्याल रखा करें कि न्यूज चैनल का शो है, कोई शक्कर करे डेकोरम देखा हर बारी तुहाडे भैन तुहानू समझा देने है। भाईजान क्या मतलब यार? फजूल जो मर्जी कह लो, मैसेज बाबू ने मुझे ही करना है। यार, इतनी तुम रहती नहीं गुला लाई। ब्यूटी पार्लर वाली तेरी कटिंग नहीं कर दी तो मैसेज तेनू किसे की करना देखिए मेरी बात सुने, आप लोग तस्लीम करें या ना करें, आपकी जो भी पोजीशन है, जो भी आपके मसाइल हैं, उसमें आपका अपना भी बहुत बड़ा हाथ है। आपने खुद भी अपने आप को मजाक बनाया हुआ है। देखिए, अगर आप अपने लिए मुलाजमतों का हसूल चाहती है तो आप लोग संजीदा बुनियादों पर कोई कैंपेन क्यों नहीं चलाते? जुनैद साहब संजीदा होकर कैंपेन चलाई थी, आगे से हुकूमत ने मजाक शुरू कर दी। कब? आपको नहीं पता, आप माशाल्लाह इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। क्या हुआ था? हुकूमत ने कह दिया जी कि ठीक है डीजीपीआर में आपको नौकरियां मिल जाएंगी, हाँ। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में। हाँ, अनाउंस किया था। हाँ, तो नौकरी उसे दी जाएगी जिसने मैस कॉम किया हो। हाँ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਸ ਕੌਮ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਐਸ ਕੌਮ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ यानी आपका मतलब ये है कि आपने तालीम भी हासिल नहीं करनी और आपने मुलाजमतें भी लेनी, ठीक है ना? आप लोग अवेयरनेस की कैंपेन क्यों नहीं चलाते कि ख्वाजा सराओं को तालीम हासिल करनी चाहिए? आप लोग मैस कॉम क्यों नहीं कर सकते? आप लोग बीए एमए क्यों नहीं कर सकते? तालीम कहां से हासिल करें जुनैद साहब? हम तो शनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए नादरा के दफ्तर जाते हैं तो वो हंसना शुरू कर देते हैं, कहते हैं पहले फिल्म स्टार नादरा का गाना बहाओ फिर कार्ड बनेगा। गया बे गया बोले अड़िया दिल वाला पेट जरा खोले अड़िया लेके मर जाएंगी कुछ कर जाएंगी बाजी बाजी शहरी बाबू आ गया, दरवाजा खोल दो। हाय दरवाजा बंद किने कीता सी? खलो जा नहीं उतरियो नहीं इधर आ जा नहीं शहरी बाबू उन्हां दा अखबार सुट्टण वाला होना ही उन्हें जाके बैठे। तालीम हासिल करने के हवाले से भी महज आप बहानेबाजी से काम ले रहे हैं, वरना कुछ अर्सा पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए खास तौर पे एक प्रोग्राम शुरू किया था, आपको पता है? शुक्र है कोई प्रोग्राम शुरू होया, वरना जदों दा शहबाज शरीफ ने 10 बजे शादियों का टाइम रखा प्रोग्राम तो बंद ही हो गए। वो प्रोग्राम नहीं यार, यूनिवर्सिटी का प्लान ये था कि ख्वाजा सराओं को घर बैठे बिला मुआवजा निचली सतह से लेकर हायर एजुकेशन तक की तालीम दी जाए, ये प्रोग्राम था। हाय बिला मुआवजा ते कदी ਅਸੀਂ ਨੱਚੇ नहीं, बिला मुआवजा तालीम क्यों हासिल कर लांगे? खलो जानी ओ 380 तो लाख रुपए का मुजरा करने वाली बच्चा करो रुपया लैके चीज लैन जान दिया तू 80 रुपया वेख के तो गली च नचन लग पैंदी। आप लोगों का असल मसला ये है, जो आप अपने हकूक की बात करते हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों ने अपने आप को मुजरा, नाचना, मांगना यहां तक महदूद कर लिया। ये हमारी फिजिकल फिटनेस है। ये कौन सी फिजिकल फिटनेस है यार? जुनैद साहब यही तो हमारे साथ ट्रेजिडी है। आप हमारी इस हिलजुल को, इस लचक को डांस समझते हैं, मजाक समझते हैं। अब क्या करें, हमें अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया तो आप लोग फिर हमें इस तरह सीरियस लेना। एक हद तक इनकी ये बात दुरुस्त है कि मतलब ये कुदरत की तरफ से है, इनके अंदर जो एक जनखापन पाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों ने खुद भी तो अपना मजाक बनवा लिया ना, सिर्फ नाच गाने की बात करना, मांगना। और एक और अलमिया ये है कि बहुत सारे लोग जो ख्वाजा सरा नहीं है वो इनकी सबों में इसलिए शामिल हैं कि वो मांग सकें, कि वो नाच सकें। ये क्या यही बात तो है? हमारा मुतालबा है जुनैद साहब के हमारे अंदर जो काली भेड़ें घुस गई हुई हैं उनको निकाला जाए। असल में वो भेड़ें नहीं है, मेंढे हैं उतरे। ये बात भी वैसे ठीक है। अभी कुछ अर्सा पहले सेनेट की जो कायमा कमेटी बनाई गई थी इन लोगों के हकूक के हवाले से, उसमें इनकी नुमाइंदगी जिन लोगों को दी गई थी उनका दूर दूर तक ख्वाजा सराओं के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। वो ख्वाजा सरा थे ही नहीं, बाल बच्चेदार लोग थे, लेकिन सिर्फ पैसे के चक्कर में ये जो एनजीओज बनी हुई है ख्वाजा सराओं के हकूक के हवाले से, पैसे ऐंठने के चक्कर में ख्वाजा सरा बने हुए। क्या बताएं जुनैद साहब, हमारा तो जब भी इशू डिस्कस हुआ है ना, कभी बेहतरी नहीं आई, सिर्फ चंद लोग पैसे कमा के निकल गए। जुनैद साहब हमारी तो हुक्मरानों से सिर्फ एक ही अपील है, क्या? माही मेरे यारों दे ना मारी मैं गाला है जिंद जानदा जान दे दे आगी रब जानदा जान दे दे आगी रब जानदा माही मेरे यारों दे ना मारी मैं गाला है जिंद जानदा
बाजी शहरी बाबू रोटी मांग रहा, दे दूं? उतरिए केड़ा शहरी बाबू है, तेन पता नहीं लगन दिया जिन्हें गर्मियों च एडा मोटा कोट पाया वो पागल है। जुनैद साहब, हम सिर्फ हुक्मरानों को ये कहना चाहते हैं कि हमें पागल ना बनाए। बिल्कुल साडे मुतालबे पूरे करने ने ते करन, नहीं तो सानू साफ साफ कह दियो होंठा उत्ते जंगरे लाल है, मुंह कुछ ना कहो, मिलेगा जुल्म दा बदला, मिलेगा जुल्म दा बदला। नहीं ठहर जानी, केड़े तेन एडे जन्म से आदे कोड़े बजन दे? नहीं बांदरी बानो, तेन की तकलीफ है, तू ये दिन रल जानी है। नामरा ते हर जगह तो दलील करांदी है, तो चैनल तो भी दलील होके निकलना जी। और वेखा चुटकी भी तो ताड़ी भैन है ना, है बोलन डई हो। नहीं बाजी, आज मैं देख रहा हूँ चुटकी बिल्कुल खामोश और अफसरदा बैठी। खैर है? खौफजदा बेचारी पर राती हॉरर फिल्म वेख बैठी। कौन सी हॉरर मूवी देखी थी? इन्हां दी सालगिरह दी मूवी वेख बैठी। हम तो ये हॉरर फिल्म सी और टेक्नीशियन को थोड़ी लाइट घट हो गई है, हॉरर कहनी लाइट घट गई सी ते फिर की है? तेरी कड़ी सालगिरह बुर्ज खलीफा ते हुई सी। सारियां उतरियां आपस ਵਿੱਚ बैठी हैं सर, जिथे हो जी हाथ नाल केक खान डईयां सन, उत्ते की लाइट घट कर जोड़ी। बड़ी बात है कि इनकी सालगिरह में भी केक काटा गया था। हाय ते और तेरा की ख्याल है, गुजरे दी सालगिरह ते छलियां भुन के खांदे। हाय केक पाइनएप्पल दा ते जिदी सालगिरह चॉकलेट दी। अगर आप लोगों ने इसी तरह मेरा मजाक उड़ाना तो मैं चले जाऊं फिर। आप पहले जाके पता करें कि आपका शहरी बाबू बाहर आए, उसको मोहल्ले वालों ने ना पकड़ लिया हो गई। बैठी रहो नी रामलाल, फजूल ना होता मजाक उड़ाओ कमीने। एडी सोहनी उन्हें सालगिरह मनाई सी। अच्छा। हाँ जी, 100 से ज्यादा सहेलियां इकट्ठी हुई थी हमारी, नाचने वाले भी बुलाए हुए थे। आप लोगों ने नाचने वाले बुलाए हुए? भाई तो और खुसरे अपने फंक्शन ते प्लम्बर बुलाते ने, जाहिर नचने वाले बुलाने सर। मैंने तो एडी सोहनी लगन डई सी चमकीली। स्पेशल शरारा सिलवाया था मैंने। अब बस दर्जी ने टाइम ते दिता नहीं, तो फिर बेचारी ने डब्बियां वाली धोती बन के सालगिरह मनाई। फिर तो हॉरर मूवी बनती थी। खोतरी धोती कुर्ता बन के केक कोल खलो के कहती है, और कुहाड़ा फड़ाओ मैं केक वड्डा। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, गली मोहल्ले के मसाइल और उन मसाइल पर बात करने के लिए अहालियान मोहल्ला। अहालियान ने मोहल्ला तो किसी बात का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, और जिनके नाम का मोहल्ला है लतीफी स्ट्रीट, वो बेचारे खार हो रहे हैं और हर बात का जवाब देने के लिए हाजिर हैं। अच्छा, आपके नाम पे लतीफी स्ट्रीट है, आप इस मोहल्ले के सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्स गिरदाने जाते हैं। क्या आपको इस बात का लाइसेंस मिल गया कि आप कोई भी गैर कानूनी काम कर सकते हैं? अब इन सब का गिला ये है कि आपने अपने घर के बिल्कुल सामने गैर कानूनी स्पीड ब्रेकर बना लिया। अरे भाई, आज जहां पे लतीफी ये बात भी क्लियर करके जाएगा कि किस लिए बनवाया, किस लिए बनवाया, ये भी तो पूछो। तो आपने किस लिए बनवाया? अरे एक मिनट ठहर बे, यकीन मानो जुनैद साहब, आपकी भावत घूंघट निकालिए। आपकी भावत बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन है, हंसी वाली इसमें कोई बात नहीं है। मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, और बच्चे जो हैं वो हमारे घर से निकल के जब छुट्टी होती है, जब यहाँ आते हैं तो उछल कूद करते हैं सड़क के ऊपर। गाड़ी वहां से तेज गुजरती है तो हमने कहा भाई यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, गाड़ी जरा स्पीड आहिस्ता कर ली अपनी, ताकि हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं मोहल्ले के, हमने को अपने लिए थोड़ी बनाया। अच्छा, अब भाई मोहल्ले के बच्चों के लिए बनवाया ना, हमारा तो उसमें नुकसान हुआ कई दफा।
6 माह पहले भट्ट साहब ने अपने घर के सामने स्पीड ब्रेकर बनवाया था, तो आपने अदालत का दरवाजा जा खटखटाया था कि इन्होंने गैर कानूनी बनाया। ये भी पूछिए क्यों 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 बताएं क्यों खटखटाया दरवाजा? बताएं क्यों? अरे भैया, ये खुदा के लिए ये नकलबाजी ना कीजिए, हमारी बात को सीरियस लीजिए। संजीदगी से बताएं ना। भाई पूछिए जरा मौसूफ से कि किस लिए अपने घर के सामने स्पीड ब्रेकर बनवा लिया। हमारा तो चलो बच्चों का मसला था। उनके पास भी दलाइल मौजूद है। क्या दलाल मौजूद है? बताएं सिवाय इसके कि मोहल्लेदारों को उससे तकलीफ पहुंच रही थी। भट्ट साहब आपको बताएं। बताया हमने आपको बताया कि मौसूफ ने वहां पे स्पीड ब्रेकर बना लिया। किसी को ना बताया, ना पूछा, ना आगाह किया। हमारी बेगम साहिबा घूंघट निकाल के घर से निकली है। मालूम नहीं था इनको कि आगे स्पीड ब्रेकर बना चुके हैं भट्ट साहब। स्पीड ब्रेकर पे ठोकर खा के गिरी हैं। इतना बुरा गिरी हैं, ऊपर से बेचारी नंदी मुन्नी सी हैं। मोहल्लेदार एक हमारे सूफी साहब, बड़े शरीफ आदमी, उन्होंने शोर मचा दिया, भाई किसी का बच्चा गिर गया है। हमने कहा सूफी साहब कुछ तो ख्याल फरमाइए, आपकी भावश है। क्योंकि मौसूफा ने गिर के भी घूंघट नहीं छोड़ा, इसलिए सूफी साहब ने पहचाना नहीं। जिस स्पीड ब्रेकर से तुम्हारी बेगम गिर जाए वो गलत है और तुम्हारा स्पीड ब्रेकर ठीक है। अबे तू मत बोल बीच में। ये अबे किसने कहा है? बस बस आराम से। लतीफी साहब आपकी सारी इज्जत करते हैं, लतीफी साहब कहते हैं आपको, आप भी चुगताई साहब कहें। हाँ। अबे तो नहीं बनता ना, अब बनता जी अबे। ये देख रहे हैं? असल में जुनैद मियां, जिस दिन आपकी भाभी घूंघट निकालिए, खुदा के लिए मत छोड़िए घूंघट। हम नहीं चाहते कि आपका रुखे महताब कोई और देखे। लतीफी भाई नहीं मन रही भाभी ते 4 चफेरे कनात लवा दियो। लोकी पूछन ते कहना मैं विच तरेक लाई है। अबे और धनेक की सोटी, बात कर रहे थे लतीफी साहब को, क्या हो गया? बड़ों की बात में मत बोलो। चले लतीफी साहब प्लीज जाने दे, गुस्सा न करें आप। जुनैद मियां, आपको क्या बताऊं कि जिस दिन तुम्हारी भाभी इनके बनाए हुए स्पीड ब्रेकर पर से गिरी हैं, हमारी नजरों से गिर गई। क्या मतलब? वो बेचारी गिरी हैं, आप कह रहे नजरों से गिर गई? भाई गिरी ही कुछ इस सदा से है कि कई दिनों तक हमारी नजरों से वो सीन नहीं हटा। हमने अमराव जान अदा के वाइंडअप पे फिल्म स्टार रानी को जहर पी के गिरते हुए देखा है। हमने खुशियां फिल्म में मुनव्वर जरीफ साहब को नाच नाच के गिरते हुए देखा क्या मिसाल है। है? हमने रंगीला साहब को कई फिल्मों में गिरते हुए देखा है, मगर उन लोगों के गिरने में कोई अदा थी। ये तो ऐसे गिरी हैं जैसे बावर्ची खाने में पीतल का गिलास चिप्स वाले फर्श के ऊपर गिर के कितनी देर लुढ़कनाता रहता है और आखिर पे गोल घूम घूम के किसी दीवार के साथ जा लगता है। जिन्हें साहब मैं आपको बताता हूं, आपको पता है कि मैं मोहल्ले का न्यूट्रल आदमी हूं। हाँ, ये देखो ना, देखो असल में वो स्पीड ब्रेकर ही इतना ऊंचा बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मिसेज लतीफी के गिट्टे थोड़े टेढ़े हैं। गिट्टे क्या मतलब? टखने। हाँ, टखनों की बात हो रही है। घूंघट निकालिए और आइंदा जुराबे भी मोटी पहनी है। किसी को आपका टेढ़ापन नहीं नजर आना चाहिए। मुझे ये बताएं कि कौन सी मजाज अथॉरिटी ये फैसला करेगी कि आप दोनों में से किस बंदे का स्पीड ब्रेकर कानूनी है और किसका गैर कानूनी है? सर वो दोनों ही गलत बनाए हुए हैं स्पीड ब्रेकर। मेरे बाबा ने नई ओडी गाड़ी ली है, उसके बम्पर टच होते हैं। अच्छा, ओडी गाड़ी है जी। तुम्हारे पापा को भी तो चाहिए ना ओडी गाड़ी ले, जिड्डे वो आप है। उस हिसाब से तो फिर वो वाली बनती है। लतीफी साहब अपनी इज्जत अपने हाथ में होती, मैं बता दूं आपको। लिहाज किया बे। क्या बे? जुनैद साहब पूरे मोहल्ले में सिर्फ मेरे पास गाड़ी है, वो भी ओडी, और ये मुझे अबे अबे कह रहे हैं। वो तो अपने पास रख अपनी गाड़ी। मेरी फैक्ट्री में 36 मुलाजिम है और मुझे सर जनाब के अलावा बात नहीं करते, और ये अबे अबे कह रहे हैं। वो तुम्हारे मुंह पे कहते हैं सर जनाब। जब वहां से दफा हो जाते हो, उसके बाद जो तुम्हारे मुतल्लिक गालम गलोच होती है वो भी कभी रिकॉर्ड करवा के सुनो। इनकी गैर मौजूदगी में इनको क्या कहते हैं? अरे वो जॉनी लीवर है ना, इंडियन एक्टर, उसके परवजन से जॉनी गीजर कहते हैं। जॉनी एक दफा हमारी बावज यानी इनकी जौजा मोहतरमा बाथरूम में मुंह हाथ धो रही थी। उन्होंने नौकरानी को आवाज लगाई, अभी कम्बाब गीजर तो जलाओ। नौकरानी ने माचिस पकड़ के इनके कमरे में घुस के इनको आग लगा दी। देखा जुनैद साहब, बात बनाने की खातिर मुझे आग लगा रहे हैं। अरे तो तुमने जो हमारी बेगम
घूंघट निकालिए, खुदा के लिए अपने आप को ढांप के रखिए। ढांप के रखिए, लतीफी साहब ने वखरा ही पतीसा लाया है। अच्छा जी, इन लोगों का तो ट्यूशन सेंटर है ना, इन्होंने इस वजह से स्पीड ब्रेकर बनाया। जी हाँ। आप लोगों ने अपने घर के सामने क्यों स्पीड ब्रेकर बनवा लिया? ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਤਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਚੁਗਤਾਈ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਡੱਡੂ ਓਹ। ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਡੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮ ਕੁਕੜੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤੀ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਲਾਡਾ ਬਾਲੀ ਕੁਕੜੀ ਇਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਵਾਲੇ ਖਵਾਨੀ ਸਾਂ। ये जरा गौर कीजिए कि मुंह के नवाले अभी कुकड़ी को खिलाती रही है तो फिर ये हालत है। इनकी हालत भी देखिए और इनके कुकड़ की हालत भी देखिए। लतीफी तू मैनू जानदा नहीं अजे। अबे जानता हूं तुम्हें, ये मुझ पे जिस्मानी रोग न डालो, इतने तुम तुर्रम खान। अपना जिस्म देखो, 2 दफा छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल पे आए, पिस्तौल दिखा के इससे मोबाइल छीन के ले गए। क्या हो गया? अभी तीसरी दफा भी किसी राहगीर ने पता पूछने के लिए इसके करीब ब्रेक लगाई है, फौरन अपना मोबाइल निकाल के उसे पकड़ा। उसने कहा भाई हमने कॉल नहीं करनी कोई, हमने तो पूछना है कि लतीफी स्ट्रीट कौन सी। उधर भी बदबख्त मेरे नाम से ही बचा है, लतीफी स्ट्रीट। ਵੈਸੇ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ ਦਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੁਨੇਦ ਸਾਹਿਬ। क्यों? ਨਾ ਤੇ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਸ ਆ ਖਲੋਂਦੀ ਵੀ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ ਹੋਣਾ। ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ, ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ। अबे लिखने लिखाने की क्या जरूरत है बाबर मियां? नाम वो जो दिलों में जिंदा रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा भुट्टो तेरा नाम रहेगा। हाँ जी, लतीफी इसी के बरवजन है लतीफी स्ट्रीट की। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके नाम से जो गली मंसूब की गई है उसकी कोई ऑफिशियल हैसियत नहीं है। जुनैद मियां वो भी गलतीन हासद मोहल्लेदारों की, और खास तौर पे ये बाबर मियां गुस्सा ना करना, गुस्सा ना करना। क्या हुआ? ये तुम्हारी ढील की वजह से लतीफी स्ट्रीट ऑफिशियल होते होते रह गई। क्यों? 1.5 साल ये कमबख्त हमारे घर से लस्सी लेता रहा, क्या मतलब? और आपकी बावजूद ऊपर थोड़ा सा मक्खन भी डाल के देती रही। गो मक्खन ने कोई इनके चेहरे पर फर्क नहीं डाला, मगर हम अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहे, सिर्फ इसलिए कि हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि जो भी मोहल्लेदार आपकी दुकान से सौदा सल्फ लेने के लिए आए, उसका एड्रेस अपनी कॉपी के ऊपर लतीफी स्ट्रीट लिखना, बावाज़े बुलंद। मगर 1.5 साल मक्खन समेत लस्सी पीने के बावजूद इन्होंने कॉपी में कहीं एक जगह भी लतीफी स्ट्रीट नहीं लिखा। हर जगह गली नंबर 12, गली नंबर 12, गली नंबर 12। बात सिर्फ इतनी सी है कि सारे मोहल्ले वाले मेरे लतीफी साहब से जेलस हैं। सत्य जाऊं मेरे लतीफी साहब, इसीलिए हम कहते हैं घूंघट निकाल, हम आपके आप हमारे। इसमें जलने वाली कौन सी बात है? ना लतीफी साहब का पफ है, ना कभी ये पैंट शर्ट पहनते हैं। अब है या नहीं है? आपको तो 1.5 साल तक लस्सी पिलाते रहे ना, वो भी मक्खन वाली। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਰ ਖਾਵਾਂ? क्या मतलब? ਉਹ ਜੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਬਿਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। क्यों? ਉਹ ਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਭਾ ਸਾਦਕ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ। अच्छा। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਬਾਰਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ 250 ਨਾਨ का ना ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇ। अच्छा। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸ਼ਾਮਤ ਨਾਲ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ ਲਿਖਾਤਾ ਪਤਾ। अच्छा। ਉਹ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਬਰਾਤ ਬਹਿ ਬਹਿ ਥੱਕ ਗਈ, ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਵਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਕਿ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੱਜ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਾਨਾ ਨੂੰ, ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਸਾਲਣ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਜੱਜ ਵੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾਨਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ, ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ, ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਤੀਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹੀ होना। सुन रहे हैं आप? इन्हीं बातों पे 3 दफा तुम्हारी दुकान में चोरी हुई है। बदबख्त छोटे छोटे दुकानदार कहां से कहां पहुंच गए, इतने इतने बड़े उन्होंने स्टोर बना लिए, ये वहीं बैठा हुआ है करियाने की हट्टी खोल के।
लतीफी साहब मेरा की कसूर है, नाना वाले ने क्या सी? कमबख्त सारे मोहल्ले के एक एक शख्स को बताऊंगा कि तुम्हारी दुकान के अंदर इतना इतना बड़ा चूहा फिर रहा होता है। हाय हाय बाबर भाई तुसी सानू एडा गंदा सौदा खवाते रहे हो। और आपका क्या ख्याल है कि ये हाइपर स्टार का मालिक है? इतना इतना लंबा चूहा। ओ भैन मेरी लतीफी साहब ने तो मोटे शीशे वाली ऐनक लाई है, उन्होंने तो एडा चूहा भी एडा सारा लगता है। चलो इतना तो माने हो ना, 2-3 महीनों में वो भी इतना हो जाएगा। चलो फिलहाल तो चूही कहो ना। चोरी से याद आया, घूंघट निकालिए। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ ਇਹੀ ਬੱਟ ਸਟਰੀਟ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਗਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਬੱਟ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। 9-13 ਦੀ ਗਲੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਚੈਨਾ ਚੌਂਕ ਬਣਾਇਆ। हाँ गल सही है, वैसे लतीफी स्ट्रीट कितनी की मशहूर हो जाएगी। लतीफी साहब के अपने रिश्तेदार सारे हिंदुस्तान च रह गए। बस भाई बस, ना लतीफी स्ट्रीट ना बट स्ट्रीट, मेरे अब्बू लगवान गए चुगताई स्ट्रीट, बड़ा कतबा। हाँ, बड़ा कतबा लिखवाएंगे अपनी कबर दे उत्ते। बात तो सारी इतनी सी है ना कि जो हुकूमत के काम है वो हुकूमत को करने दे। जब हुकूमत के काम आप लोग खुद करने लगेंगे तो फिर इस तरह के मसाइल ही पैदा होंगे। अल्लाह आपका भला करे। यही बात मैंने इनसे कही कि सारे मोहल्लेदार दरखास्त लिख के कि इस गली का नाम लतीफी स्ट्रीट रखा जाए, दस्तखत करके किसी सरकारी दफ्तर में इंदराज करवा दीजिए। फिर नहीं माने। नहीं जी, कहने लगे लतीफी मियां आपके फौत होने के बाद हम ऐसा सोच सकते हैं। मैंने कहा फिर भी सोच सकती है भाई, पक्की बात करो तो चलो बंदा रिस्क भी ले लेता है। मुंह से ऐसी बात मत निकालिए। आप घूंघट निकालिए। स्पीड ब्रेकर हो या गली का नाम रखने की बात हो, असल बात यह है कि ये सरकार का काम है, सरकार को करने दे। यही बात मैं लतीफी साहब को समझाता हूँ, इनकी समझ में नहीं आती। अरे लतीफी साहब को क्या समझाना है तूने? पहले अपने चूहों को तो समझा जो पिछले पांव में बैठ के अगले पांव से बादाम खा रहे होते हैं। बंदा चूहे से पूछे तुम बादाम खा रहे हो, तुम्हारी कौन सी याददाश्त कम हो गई? और क्या याददाश्त तुम्हारी कमजोर हो गई है या जाके तुमने किसी प्रोग्राम की एंकरी कर दी? यार आज सबसे पहला काम आप लोग ये कीजिएगा कि लतीफी स्ट्रीट को ना काले बुरश से मिटाइएगा। नाज़रीन यहां में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। और नाज़रीन आज हमारे साथ शरीक महफिल हैं हमारे चंद अरब दोस्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैफा हालुका या हबीबी? अल्हम्दुलिल्लाह। तगड़े ठीक है, बाल बच्चे दी सुना तुम? जिद्दन एहसन मुमताज। कोई इसका मतलब की है तुम? सब ठीक ठाक है यार। सीधी गल कर तुम। अच्छा आप बताएं कैफन था जी? बोलो कुछ दसिया भी कर तुम। पौना ऊंट नाश्ते च खा जाना ना हम ऊठुन तो लौरुन। तेरे सदके जावा तुम। इतने आंदी तेरी मैं भी शयात अली तबीयत बन जाती। या बीबी ये दो भरा ने तुम। उत्थे सहरा ऊंट दा पावा अगों पिछों चुकदे तुम और परात च रख लेंदे तुम और नाल कलवंजी वाले 100 नान मंगा लेंदे। फायदा ऊंट दी गर्दन ते इस तरह चूसदा जिवें आम बंदा कुकड़ी दी गर्दन नहीं चूसदा। अच्छा या अखी, हमने तो आपको अपने शो में दावत दी थी इस मौजू पे बात करने के लिए कि शुनीद है वहां पे अरब दुनिया में भी शहरियों के हालात खासे तंग हैं, टैक्स लगना शुरू हो गए हैं, महंगाई की एक वेव आई हुई है, लोग तंग हैं। आईवा की दसा या बीबी, हयातुन तब्दीलुन शदीदुन। आईवा क्या मतलब? जिंदगी बदल गई तुम। मैनू भी गल सीधी करनी चाहिए तुम। जब मैनू पंजाबी आंदी चूहे तुम ते मैं क्यों अरबी नू पुठा सीधा करा? गल है या बीबी साडा ते कच्छू घुमा ही पुठा हो गया।
ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਏगा। दीवार के साथ टकरा के भी हो जाता है। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ तुम? अच्छा सहरान में कच्चू कुमा का मिसाल देती तुम। अभी तो आप पर सिर्फ 5% वैट लगा है। हमसे पूछ के देखे, हम उस घर में रहते हैं, यहाँ पर 17% टैक्स हम दे रहे हैं, आपकी 5% पे चीखें निकल गई। ये बैठ नहीं लगा तुम, ये सानू टेंशन लग गई तुम। सारी जिंदगी ऐसी दवा नहीं देता तुम, लेता तुम, लेता तुम, लेता तुम। इमदाद अमदूद देंदे तुम, मगर अपनी गवर्नमेंट ਨੂੰ कभी नहीं सी कुछ देता तुम। अच्छा, वहां पर जो मुकीम गैर मुल्की हैं आपके यहाँ, खास तौर पे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, उन पर भी आपने तरह तरह से टैक्स लगा दिया। सीधी तरह आप उनको कहें जी जाओ अपने मुल्कों को वापस जाओ। नहीं तो होर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है, अपने बच्चिਆਂ ਨੂੰ वक्त पा दईए तुम। एक अरसे से वो आपको सर्विसेज दे रहे थे। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਮ। ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਮ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਮ। ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਲ ਦੌੜਦੇ ਤੁਮ, ਕਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਤੁਮ। ਆਪ ਨੇਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੜਦੇ ਤੁਮ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੁਮ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। थोड़े दिन इंतजार करें, आपकी वो हालत हो जाए। ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕਤਰੀਨਾ ਕੈਫ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਰਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੂੰ। वहां तो रिक्शा है ही नहीं है। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਮਹੱਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਣੀ ਤੂੰ। हाँ या रफीका, साढ़े बच्चे भी उन सलमान खान वांगर बॉडी बनावत उन। अच्छा, सलमान खान तो शर्ट उतारता है, आपके बच्चे तोप उतारेंगे पूरी। ला लेंगे तुम, तोप ते सगों सौखी लथ दी तुम। ਫਲੂਟਰ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਤੋਪ ਇੰਜ ਲੱਥਦੀ ਤੁਮ। अच्छा यार, मेरी बात सुने, सऊदाइजेशन अपनी जगह, गल्फाइजेशन अपनी जगह, आपका राइट बनता है कि आप अपने लोगों पे इंहिसार करें, लेकिन अगर सारे ओवरसीज आपने निकाल दिए अरब दुनिया से, तो आप लोग खुद कैसे काम करेंगे? आपको तो गाड़ी का टायर भी चेंज करना नहीं आता। ਉਹ ਯਾ ਬੀਬੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਰੀਮ ਆਗਾ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੁਮਾ 4 ਦਿਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਆ ਤੁਨ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਐ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੈਮੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਮ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅਰਬੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੈਮੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਜੇ ਆ ਖੈਮਾ, ਲੱਖ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆਣ, ਕਦੀ ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕ ਤੇ ਪੇਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ। ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਕਿਰਲਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਤੂੰ, ਜਿੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਇਹ ਚੜਦਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ। नहीं, मुझे ये जरा समझाए कि आप लोग टैक्स से इतना भाग क्यों रहे हैं? पूरी अरब दुनिया इतनी अमीर है, उसके शहरी इतने अमीर हैं, तो टैक्स से क्यों करने कतरा रहे? ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। इनका क्या कारोबार है? ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇਹਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों नहीं चला आपका कारोबार? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਕਾਬ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਖਜੂਰਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚਦਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। 3 ਤੇਲ ਦੇ ਖੂਹ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੀਲੀਆਂ ਬਾਬਲ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੱਕ। ਚਾਚੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰ। ਕਿਉਂ? ਬਜਾਏ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਾਂ ਦੌੜਨ ਦੇ, ਖੂਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਖੂਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਡੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਚ 10 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਚ 13 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਚ ਮਰ ਕੇ ਕੋਈ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ। वो भी पेट्रोल पंप से खरीद के आपने डाला। ਕਾਦੇ ਸਨ, ਪੀਪੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਲੇ ਭਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਨੇ ਤੂਨੇ, ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਨੇ ਤੂਨੇ। अच्छा, कुओं को तो आग लग गई, अब आप क्या कारोबार करते हैं? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਕੱਢਣਾ।
देखिए सऊदी अरब की आमदन का 90% इन्हिसार जो है वो तेल पे था। अब सऊदी अरब ने सोचना शुरू कर दिया है कि ये इन्हिसार कम किया जाए, दीगर जराए आमदन पैदा किए जाए। इस पे आपको क्या एतराज है? करना पैना तुम, करना पैना तुम, क्योंकि सुनिया अगों तो बिजली वाली गड्डियां निकल आईਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਮ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੱਗ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਤੁਮ। तो फिर जो टैक्स लगा है वो जस्टिफाइड है ना, ठीक लगा? नहीं वो गलत लगा तुम। क्यों? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੁਮ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਮ। ये क्या बात है? खुद आप इस टैक्स पे चीख रहे हैं और वहां पे आपके यहाँ जो गैर मुल्की काम करते हैं उन पर आपने तरह तरह के टैक्स लगा दिए। और एक ठीक होया तुम। क्यों ठीक हुआ भाई? वहां पर जो मजदूर काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली समेत वहां पे रह रहे हैं, उन पर भी आपने 100 रियाल फी कस टैक्स आयद कर दिया। ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਤੁਮ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰਵੇ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ 100 ਰਿਆਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਮ, ਆਪੇ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਜੰਮਣਗੇ ਤੁਮ। लेकिन फिर भी देखे 100 रियाल, ये 100 रियाल भी एडे बच्चे का लाया तुम, एडे बच्चे का तो 1500 रियाल देना पैना। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਬੜਾ ਵੇਲਾ ਰਹਿ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਆ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕੱਦ ਚੋਰ ਜਿੱਡਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਇਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਜੀ ਕੱਸ, ਫਰਾਰੀ ਦੀ ਸਟਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣ ਚੱਲਿਆ। तो ठीक है ना, मैं क्यों मंजी कसा तुम? ढिलियां ये करदा तुम ते कसा मैं तुम। ये मंजी ते कोलों लंघे मंजी ढिली हो जाती, इन्हू वेख के खौफ नाल नीवी हो जाती। अच्छा जी, आपका इस टैक्स के बारे में क्या? अच्छा, आपका बिजनेस क्या है? बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं? सवेरे सवेरे घरों ऊँट खोल के बाहर बन आंदा तुम, अच्छा, बाहरों बकरियां खोल के अंदर ले आंदा। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਮਦਰ ਆਏ। ਊਂਠ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੂੰ। कोई बड़ी चीज एक्सपोर्ट करते होंगे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਊਂਠ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। देखो क्या कौन रहा है? नहीं, सही सही बताए ना, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं? ਇਹ ਰੇਤਾਂ ਚੋਂ ਕਰੂੰਡੀਏ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ। यार, नाम 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 सही बताया। هذا जैतून का तेल एक्सपोर्ट करतुन और सरसों का तेल इंपोर्ट करतुन। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਰੁੜ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇੰਜ ਪਾਇਆ ਤੂੰ, ਅੱਧੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਲੀ ਭਰ ਗਈ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੱਲਿਆ ਤੂੰ। अच्छा जी, आप टैक्स के बारे में पहले अपना बिजनेस तो बताए। अच्छा तो बिजनेस समझिए, बिजनेस ये तो खैरात पे पलते हैं ना। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ। नहीं कर, ये तो आप मजाक कह रहे हैं ना, संजीदगी से बताए क्या काम करते हैं? ਇਹ ਜੀ ਰੇਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜ ਲੈ, ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ 6 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, आप लोग सारे ही इस तरह टैक्स से भाग क्यों रहे हैं? अच्छा, आपका क्या कारोबार है जी? ਇਹ ਊਂਠਾਂ ਦਾ ਗੋਇਆ ਵੇਚਦਾ। ਯਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ, तेल का? ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਜੀ। ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा, ਆਪੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦਾ, ਆਪੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਖੂਹ 'ਚ ਫਸੀ ਆ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਬਸ ਉਹ ਦਾਦਾ ਇਹਦਾ ਪਤਲਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ। अच्छा, सबका आपने बता दिए, अपना बताया नहीं, आप क्या काम करते हैं? ਯਾ ਹਬੀਬੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਂ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ये सारे तो टैक्स से इस तरह भागे हुए हैं। अच्छा देखिए ना, कुछ टैक्सेस तो ऐसे हैं ना जिनको आपको वेलकम करना चाहिए, जैसे सिगरेट पे टैक्स लगा है, हाँ। उससे उसकी कीमत दुगनी हो गई है, इस्तेमाल जाहिर है कम हो जाएगा उसका। ਯਾ ਹਬੀਬੀ, ਇਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੂੰ। ये सिगरेट पीते हैं? ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਿਗਰਟ ਮੈਂ। क्यों? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਛੱਡ ਗਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। अभी तो आप बता रहे थे कि कुएं में आग लग गई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई आपकी अहलिया। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ 16ਵੀਂ ਸੀ, ਇਹ 18ਵੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੇ।
18वीं बेगम सी के तरमीम सी। नहीं तो क्यों छोड़ के चली गई आपको? बस की दसीए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਜੀ ਯਖਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸਾਂ। ओए ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਆਮਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕਹਿ। ਬਸ ਉੱਠੀ, ਆਪਣੀ ਯਖਣੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਪਾ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ। 2-3 ਜੋੜੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। अच्छा ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਯਖਣੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮਰਨੋਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए।